Hello and welcome to the live chit chat show organized by Awesome World Entertainment. Awesome World Entertainment is not only working in India but in different countries for last 14 years. They are into artist and celebrity management, corporate events, digital and media production and many more. To know more about it, you have to log in onto the page of Awesome World Entertainment Int. Well guys, let me tell you that today is the last day of this season 1. Last episode of season 1. So we'll start season 2 very soon. So I would like to request all of you that any one of you who likes to join our show can message me at any time. So that I can take you in the next show for the next season. Okay. So yeah, hello everybody for joining. Hi Satyajit. Hello Ayush. Hi Vishakha. So guys, let me tell you about today's guest. She is again a multifaceted personality, Vishakha Singh Gautam, who has started her career as an entrepreneur. Now she is a culinary artist. So let's take her online to know more about her. Kindly stay tuned, taking her online. Okay. Hi Rax. Hello Chiranjit. Yeah, I'm sending a request. That this is the last season for episode 1. So any one of you who would like to come to our show, do message me. We'll take you. Hi Vishakha. Hello, Madhu. How are you? I'm good. I'm very fine. So how are you doing these days? I'm doing good. Well, Vishakha, it's lovely to see you after a long time, almost after 2 years, right? Hanji. We just last see each other. It is about 2018 December. Yes. Isn't it? Yes. So okay. So Vishakha, I would like to. I think that time we didn't have that much conversation. So I would like to know about your life journey. That you started as an entrepreneur. You are a sports person also. You're doing marathon. So you just tell me about your life journey. I would like to know about from an entrepreneur to a cooking artist. How it happened to you. Actually, I did my MBA. After that, I became this consultant for ISO 9001. So this is my first job, my first journey, which I have started. So I was living in Agra, and I started my career there. So as you all know, Agra is a hub for leather industry. Yeah. तो मैंने उस लेदर इंडस्ट्री को पकड़ा जो हमारा मेन है एक्सपोर्टर्स. हमारा मेन रेवेन्यू है पूरा इंडिया का जो हम शेयर करते हैं वो हमारा रेवेन्यू लेदर एक्सपोर्ट से होता है. तो जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स थे उनको मैंने पकड़ा और उनका पूरा जो फार्म होता है उनको मैंने ISO 9000 के लिए कन्विंस किया. Then I came connected to this chain in leather industry. तो मेरा ऐसे मेरा करियर स्टार्ट होता गया. तो ये सर्टिफिकेशन जो दिया जाता है वो एक प्रोडक्ट को नहीं दिया जाता, ये उनके मैनेजमेंट जो काम करते हैं ये सिस्टम को दिया जाता है. तो जो एक्सपोर्टर्स थे बाहर से जो आते थे तो आई हैव टू डू कम्युनिकेशन विद देम, कैसे मीन्स इसकी करेक्टिव एक्शंस होते थे, कैसे इसकी प्लानिंग करनी है. सो आई यूज्ड टू इन्वॉल्व इन दैट आल्सो. तो मुझे बहुत मतलब 8 साल मैंने काम किया ISO के लिए. फिर मेरी शादी हुई, मैं पुणे आ गई इन 2007. फिर मेरा वो करियर वहां छूट गया. यहाँ पे तो लेदर इंडस्ट्री नहीं है. फिर मैंने यहाँ पे फूड इंडस्ट्री को पकड़ा. स्टार्ट मतलब यहाँ मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो थे मेरे काका हलवाई थे. हाँ जी. फिर ऐसे ही जर्नी साइंटिस्ट और फिर कुछ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो गया. यहाँ पे मैंने सर्च किया कहाँ स्कोप है. फिर जो है सलून्स थे हमारे, स्पा सेंटर्स और स्लिमिंग सेंटर्स, मैंने उनको पकड़ा. तो इट्स अ ग्रेट जर्नी एंड अ लॉन्ग जर्नी. अभी बहुत तो फ्रॉम MBA देन यू से दैट यू आर अ हाउस इंजीनियर. तो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, वो हाउस इंजीनियर बोलने से क्या मतलब है? आर यू डिजाइनिंग हाउस आल्सो या फिर कोई प्लानिंग वगैरह करते हो? यानी कि पूरी
पूरी अवतार समाया हुआ है, पूरा जो हर तरह का अवतार जो है वो तुम्हारे में समाया हुआ है विशाखा. जस्ट आई वांट टू नो दैट कि what exactly you mean by that. एक्चुअली हम जो है हाउस वाइफ कहते हैं, या कहते हैं कि ये तो घर पे ही है, काम करती है, या तो इसका एक नया वर्जन मैंने निकाला है जिसको मतलब पिंच ना हो हाउस वाइफ को, कि वी आर हाउस इंजीनियर, मींस होम इंजीनियर. वाओ. तो ये ऐसा क्यों है कि लोग हाउसवाइफ को बहुत छोटी नजर से देखते हैं, लगता है कि वो कुछ करती नहीं है, बिकॉज वी नो दैट कि उनके पास कितनी सारी वर्कलोड है, एंड वी कैन से दैट इट्स अ वेरी ह्यूज मतलब वर्कलोड विदाउट अ पे. ठीक है, वो अगर देखा जाए तो ये इस तरह का मतलब क्यों रहता है कि हाउसवाइफ बोलने में लोगों को शर्म क्यों आती है? तुम्हें क्या लगता है कि ये क्यों है ऐसा? नहीं, शर्म तो नहीं आनी चाहिए. लोग है ना, एक्चुअली मैं सोचते हैं ये तो कुछ भी नहीं करती है, मतलब दे डिडंट नो अबाउट आवर जर्नी. अभी किसी को पता होगा मैंने इतना काम किया है अपनी लाइफ में, आई कनेक्टेड, मतलब बहुत काम किया है मैंने. मतलब हाउसवाइफ नहीं, शादी से पहले 8 साल मैंने काम किया है. फिर ऐसे अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि आप नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली है. फिर क्या होता है, शादी हो जाती है, फिर बच्चे नहीं है, फिर बच्चे करो, फिर तो ये चीजें हैं तो जिससे हमारा जो करियर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है. अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो थोड़ा सा इसमें चैलेंजिंग है, आई कैन से दैट. अगर आप निभा सकते हो तो ठीक है, बट आई स्विच. मैंने वो 5 साल कह सकते हैं, 8 साल मैंने अपनी फैमिली को दिए. तो मैं हिच नहीं कहूंगी कि मुझे कोई हाउसवाइफ कहे, मैं तो कहूंगी यस, आई एम वेरी प्राउड टू फील हाउसवाइफ. अगर आप कहो absolutely, because I've seen the people like oh, housewife, what do you mean by housewife? Only money which she is earning outside the house is not only like कि आपको वही आपको पहचान दिलाता है. The thing is that she is doing so much more without taking a leave, I can say. संडे हो, मंडे हो, सैटरडे हो, कोई हॉलिडे हो, और खासकर जब त्योहार आते हैं, कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो और ज्यादा काम का लोड पड़ जाता है. तो नीड टू बी रिस्पेक्टेड. आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू सैल्यूट these ladies who are working, without any pay, and they are just to see happiness in their family, right? So अविशाखा, और आपने ब्यूटी पैजेंट में भी पार्टिसिपेट की, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आगे क्या आप जाना चाहेंगे, कभी कुछ मौका मिलेगा आपको, या किस तरह से आप अपने आप को देख रहे हो अभी? Sure, if I get an opportunity to participate once more, why not? I will definitely, yes. तो Because I've seen so many changes, पहले जब आपको देखा था, you were little shy, थोड़ा सा ये था. आज मैं देखती हूँ कि जो culinary आप जो डालते हो, कुकिंग के एपिसोड्स डालते हो, and they are so awesome. मुझे लगता है कि मैं वेट क्या कंट्रोल करूंगी, मुझसे होगा नहीं यार, बंदे इतना दिखाते हैं. तो मतलब क्या मतलब किस तरह से कुकिंग किस तरह से आया, मतलब कि क्यों लगा कि कुकिंग पे थोड़ा काम करना? शुरू से ही इच्छा था या हॉबी थी कुकिंग? हॉबी, हाँ, बचपन से मुझे इंटरेस्ट था. मेरा पैशन एक कुकिंग है और डांसिंग है. ये दोनों के बगैर मैं नहीं रह सकती, और इसीलिए मैं इतना खुश रहती हूँ. ये राज है. तभी तो हमेशा मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब एजलेस ब्यूटी जिसे हम कहते हैं, तो यू आर द एजलेस ब्यूटी विशाखा. आई मस्ट से कि हमेशा चहकते रहना, देन कुछ ना कुछ बिजी रहना, बहुत सारी एक्टिविटीज करती रहती हो. साइकिलिंग, आई थिंक यू वॉन फॉर साइकिलिंग. आई वन द गोल्ड मेडल. तो अभी क्या लगता है कि सारे के बच्चे बड़े होने के बाद जितने भी बाकी थे जो मुरादे हैं, वो सारे पूरे कर रहे हो या ऐसे ही हो कि करते रहना है कुछ ना कुछ? बच्चों के लिए, बट फिर मेरा वहां भी मतलब मेरे कीड़े जाग जाते हैं कि चलो विशाखा, क्या बात है. तो बच्चों के साथ साथ मैं भी पार्टिसिपेट कर लेती हूँ. क्या बात है. तो मतलब ये कीप ऑन मूविंग वाली बात है कि हमेशा मतलब देखो भी, कभी साइकिलिंग किया, कभी मैराथन किया, कभी कुकिंग की, तो मतलब ऑसम. तो ये लॉकडाउन सिचुएशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग ऐसे हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं. मैंने बहुत सारा चीज देखा है कि लोग को लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बाहर आना जाना बंद हुआ, फ्रेंड से मिलना बंद हुआ, काम का मतलब दे आर लूजिंग देयर जॉब. तो कंडीशन ऐसी हो गई कि लोग घर पे बैठे बैठे एक अजीब सा उनका मेंटल स्टेटस हो रहा है. तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, मतलब किस तरह से अपने आप को सही रखा जाए, क्योंकि अभी भी नहीं लगता कि आगे जाके सिचुएशन कुछ सही होने वाली है. तो विशाखा, आप कैसे रखते हो अपने आप को मोटिवेटेड टुवर्ड्स लाइफ? एक्चुअली डिप्रेशन कब आता है? जब हम फील लो करते हैं. लो, हाँ,
जब हम लो फील करेंगे, एनर्जी हमारी लो हो जाती है। तो यही है, डिप्रेशन को आने ना दें, अपने आप को राइज करें थ्रू मेडिटेशन, अच्छा खाना खाएं, अच्छा बनाएं, और जो आपका पैशन है वो फॉलो करें। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में डिप्रेशन नहीं आता है, ट्रूली स्पीकिंग नाउ डेज। तो वही है, जब आपको पता चल जाएगा कि आप डिप्रेशन में आ गए हो, तो आप उसमें अंदर मतलब घुसते ना जाओ, उससे बाहर निकलो, एनर्जी हाई करो। जिसको आपको अच्छा लगता है, मतलब दोस्त हो गए, अपने पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, या आपको कहीं हिल स्टेशन पे जाना है, आप वहां चले जाओ। आप कहोगे कि नहीं अभी जॉब है, लेट्स बाद में चलते हैं, मतलब आपको पता है मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन आप अपने लिए टाइम नहीं दे रहे हो। दिस इज द मेन रीजन। आप अपने लिए टाइम दो, अपने जो पैशन है उसको फॉलो करो, और डिप्रेशन चुटकी में चला जाएगा। जी, और मतलब इसके खुद लिए के मैं, ऊपर। हाँ, मैं एक टिप्स करती हूँ आपको। चलिए, जी। आप सब लोग है ना, एक छोटा सा हम लोग ये मेडिटेशन करते हैं। सबको कहती हूँ मैं, आप क्लोज योर आईज, आप सब अपनी आंखें बंद कर लो। प्लीज मधु, आप अपनी आंखें बंद कर लो। हम्म। टेक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल, नाउ एक्सहेल। आप अपनी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाएं। Broaden your lips, please. Everyone, please broaden your lips. Inhale, deep inhale. Now exhale. Inhale, exhale. More smile on your face. I can't see. Smile. Please, everyone, smile. आप अपने बचपन में पहुंच जाइए, अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Now, slowly open your eyes. Slowly, please open your eyes. Now you will feel more calm and more powerful. The good energy you'll be, मतलब good vibes आपके पास होंगी। तो यही, आप मेडिटेशन करो, अच्छा खाना खाओ, तो सब इजीली डिप्रेशन चला जाएगा। जी, ये थोड़े से टाइम पे ही लोग अगर थोड़ी सी अच्छी बातें याद कर लें, तो हाँ सारा जी, दिन जिसे कहते हैं कि स्टार्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ और जी। लोगों को में क्या लगता है विशाखा की डिप्रेशन का कारण जनरली क्या है? आजकल देख रहे हो कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें जो ऐसी होती हैं, जनरली लोग आते तो हैं लोगों से कनेक्ट होने के लिए, पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा या हम भी देखते हैं अपने साथ में, तो लोग सोशल मीडिया में आते तो हैं, पर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये कंपैरिजन जो वो करने लगते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, हम अपनी लाइफ को उनके साथ कंपेयर करके वो अपना लाइफ जो है वो थोड़ा सा हेल्प करने पे उतारू हो जाते हैं। तो इसके साथ मतलब आपका क्या कहना है? आप शायद स्पिरिचुअल कुछ मोटिवेशनल स्पीकर भी थे बीच में, आप कुछ वीडियोस वगैरह भी डालते थे। हाँ 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 जी। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसा है कि बहुत जरूरी है लोगों को मेंटल हील होना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफी मतलब लाइक्स नहीं मिलना, या फिर आपके पास लोगों को बहुत सारी चीजें हैं कि वो उसकी लाइफ में क्या कर रही है, मैं अभी तक बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जनरली वो उसकी लाइफ है, वो किस तरह से अपना लाइफ बिताते हैं, कोई किसी लाइफ हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता। तो इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा, मतलब तुम क्या कहना चाहोगे? अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो। एक्चुअली में ये मेरे साथ भी होता है, और हर एक के साथ भी होता है, यहाँ कोई नहीं है। सोशल मीडिया में आ गए तो आपको पास ट्रोलिंग भी होगी, अगर आप एक वीडियो डाल दोगे आपको ट्रोल किया जाएगा। तो जी। लोग नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी देते हैं। बस ये एक मंत्र है कि आप उसको कैसे लेते हो। एक राइट। होता है कि हाँ, आप फीडबैक की तरह लो इसको, और उनको बोलो थैंक यू। जो अगर गलत भी लिखता है या कुछ गलत कमेंट्स भी करता है, उनको बोलो थैंक यू, बस। और फिर देखिए, अगर आप इसको उल्टा लेंगे, अगर दिल से लगा लेंगे, तो आपका ही नुकसान होने वाला है। और वो और खुश होंगे कि ये देखिए हमारी वजह से ये, फिर आपके वीडियोस कम आने लग जाएंगे। फिर आप मतलब एक्टिव नहीं रहेंगे, जो कंसिस्टेंसी आप में थी वो जी। कंसिस्टेंसी लेवल आप में कम हो जाएगा। तो लोग यही जी तो देखना चाहते हैं आप में, कि आप कैसे गिर रहे हो, और उसी में जी उनको जी मजा जी। है।
बस ये ना होने दे, अपने आप को हावी ना होने दे किसी चीज को। नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कैसे लेते हो नेगेटिव जी थॉट्स जी। को। तो बस तो यही कुछ है, कमेंट्स, बस ब्लेसिंग्स देते रहो, गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि बस हर कोई दैट्स जो है वो व्हाट। अपनी क्योंकि क्योंकि होता है कि हर कोई होता है कि अपनी सिस्टम से सोचता है और उस पे हम कुछ कमांड नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि लोग अगर बुराई भी या क्रिटिक्स को लेने की आदत हो जाए तो शायद कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हमारे में भी हो जाती है। यस, तो ये चीज भी है। तो एवरी टाइम जैसे आप बता रहे हो कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेके ही चला करो, चाहे कुछ भी हाँ बोले लोग। जब लोगों के हाँ। बोलने से अगर हम पे असर होना शुरू कर दे तो फिर हम तो रहेंगे ही नहीं ना। मधु, तो इट्स आपको हाँ कोई बोल रहा है, अगर आप उनको हाँ ब्लेसिंग्स देते हो तो वो राइट जो बंदा है या बंदी है वो ठीक हो जाते हैं। आई हैव ऑब्जर्व दैट। बस एक वाओ पीरियड ऑफ टाइम है, बस आप मिलोगे ना उनसे तो आप यू विल फील वेरी, मतलब पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम कनेक्टेड। दैट पर्सन। यस, ओके ओके। दिस इज एक्सपीरियंस फ्रॉम माय ओन साइड। गिव वाओ वेरी ब्लेसिंग्स, नाइस। गिव ब्लेसिंग्स। राइट। दैट मीन्स ओके, दे कीप ऑन चेकिंग ऑन देयर मिस्टेक, कि कभी ऐसा होता है कि उनको अपनी मिस्टेक समझ में आ जाती है और वो फिर अपनी चीजों को चेक करना शुरू कर देते हैं एंड देन अगेन द थिंग्स बिकम्स बेटर। राइट 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 यस विशाखा, इज यस। वेरी नाइस व्हाट यू हैव सेड जस्ट नाउ। सो अभी अपनी जिंदगी में जैसे कि ये जो चल रहा है अभी मार्च से ये पीरियड चल रहा है पूरा, कब खत्म होगा पता नहीं। तो आगे Yes. जाके ये जो कुकिंग वगैरह का जो तुम शो वगैरह कर रही हो, तो कुछ बुक्स वगैरह लिखने का या आगे का प्लानिंग क्या है? मैं तो सजेस्ट अभी करूंगी तुम एक बुक लिख लो। यू शुड पार्टिसिपेट इन मास्टर शेफ ऑल्सो, क्योंकि बहुत ही लग रहा है कि तुम ट्विस्ट करते हो कुछ चीजें, अपने हिसाब से डालते हो नया नया चीज का, मतलब होता है ना कि इन्वेंशन होता है, तो व्हाई नॉट ट्राइंग फॉर द डिफरेंट लेवल। तो आई वांट टू सी यू टू दैट लेवल। तो आप क्या करना चाहते हो ये बताओ। एक्चुअली मैं लॉकडाउन में है, जो है मैं रेसिपीज तो मतलब बनाती थी, घर के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए लॉकडाउन में। फिर भी मैं फिर क्या होता था, वो जो मैं पिक्स डालती थी ना फेसबुक पे, तो ओके फिर आता था सब लोग पूछते थे रेसिपी भेजो, रेसिपी भेजो। मुझे सबसे वाओ बुरा लगता था टाइपिंग करना। ओके राइट राइट। हाँ, उसको टाइप करो फिर भेजो, और हर बार मैं कुछ ये कंसिस्टेंसी थी मेरी कि घर पे कुछ नहीं करे तो बच्चे ये सब कैसे खुश रखा जाए। तो यही था कि नई नई रेसिपीज इनको बना के खिलाती थी, क्योंकि बच्चों ने, सल्यूट करती हूँ मैं सारे बच्चों को ऑल ओवर द वर्ल्ड कि उन्होंने कैसे साथ दिया है पेरेंट्स का, कि घर में बंद है बेचारे, तो ये माओ का सही है। या जो भी में उनका तो फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ उनको हैप्पी करने के लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए या उनके साथ राइट रहना चाहिए। हाँ, गिव देम राइट इट। तो मेरा यही था कि उनको अच्छा खाना बनाओ, और मैं पिक्स है ना क्लिक करके फेसबुक पे डालती थी। तो फिर ओके ये रिक्वायरमेंट आ जाती थी, भाई रेसिपी दो, ये नहीं होता था। फिर मैंने ये स्टार्ट किया पेज, मैंने 2017 में बनाया था, बस मैं पिक्स डालती रहती थी। अब मैं लाइव है ना भाई, देख लो, और लाइव हूँ, जहाँ डाउट है आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, बस मैं टाइप नहीं कर सकती। अभी ऐसा है कि तुम्हारे ऐसी अगर ब्यूटीफुल डीवा जो है वो अगर लाइव कुकिंग सिखाए तो वैसे ही लोगों की मतलब हाँ भीड़ बढ़ने वाली है, फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखने में भी ब्यूटीफुल है, देन कुकिंग भी बहुत अच्छा करती है। आपके हस्बैंड को तो पूरा खजाना मिला हुआ है। हाँ उनका उनका बहुत उनका उनका क्या कहना है? हाँ उनका बहुत हाय सपोर्ट है। शान, हेलो काव्या। So many people have joined, just say hello to them. हेलो एवरीवन, ऑलवेज बी हैप्पी डियर, खुश या रहिए। आपके चेहरे पे या स्माइल नजर नहीं आ रही है ना मधु? हाँ नहीं नहीं, सब यहाँ पे जितने लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, आई हैव नोन देम पर्सनली। अच्छा, काव्या लखपत जी भी जो है, शी इज वन ऑफ अ जेम पर्सन आई हैव सीन। पहले इंटरव्यू मेरा उन्हीं के साथ था, काव्या अरे लखपत वाह, फ्रॉम पुणे। ओके, ओके तो ओके। वो पूरा किस तरह से अपना बिजनेस संभालती हैं, एंड यू नो शी इज लाइक इंस्पिरेशन टू मेनी वुमेन। बहुत मतलब काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। कभी मौका मिले तो मैं भी इन पर्सन मिलना चाहूंगी, एंड कभी हम मिलेंगे तो साथ में फिर मिलते हैं। श्योर 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 श्योर। तो क्या करना है, मतलब फ्यूचर में क्या करना है इस कुकिंग की फ्यूचर में तो सारे? ऑन द टोस्ट कुकिंग हैप्पीनेस को आगे लेके जाना है मुझे।
तो Okay. अभी तो हाँ, यही है, अभी लाइव चल रहे जो हमारी रेसिपीज जो लुप्त होती गई हैं, मैं उनको अभी सबके सामने लेकर आ रही हूँ। और हमारा मतलब यू डोंट बिलीव, इस लॉकडाउन में सिर्फ इंडिया में हमारी होम शेफ्स ने 56,000 कुजीन डेवलप करी हैं इन इंडिया इन दिस लॉकडाउन। कितना मतलब इतना जैम है हमारी मतलब गृहिणियों के पास, इतना मतलब कहते हैं ना कि यू नेवर नो, खजाना खजाना ट्रेजर है जो अब निकल निकल के आ रहा है, राइट? निकल के आ रहा है। कुछ तो बस टीवी देख रहे हैं और सीरीज देख रहे हैं, और कुछ है ना फ्रूटफुल, मतलब जो अपने अंदर है उसको निकाल रहे हैं। तो यही है भाई, सीरीज वगैरह टीवी वगैरह बंद कर दो और अपने जो आप टाइम जो तुम्हें मिला है उसको अपने ऊपर पूरा दो। जो आप में कला है उसको बाहर निकालो, क्रिएटिविटी, एनीथिंग। यू डू नॉट शाय कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, लोग क्या कहेंगे। लोग को जो कहना है वो कहने दीजिए, आप अपने सपने जिए। ये टाइम फिर दोबारा नहीं आएगा। ये भगवान ने हमें अपनी रीबूटिंग करने के लिए दिया है। सीरियसली, ये जो 6 मंथ्स है ना, समझ लिया ये रीबूटिंग का टाइम है। कोई तो बस जिसने समझ लिया ये प्रेशियस टाइम को अचीव करना, तो वो निकल जाएगा आगे। सही बात है। तो क्या क्या है जो विशाखा को कंटिन्यूसली मोटिवेट करता रहता है आगे की तरफ मतलब एनर्जेटिक रखता है? वर्कआउट में भी हो, फिटनेस मंत्र क्या है तुम्हारा विशाखा? मतलब हाँ, क्या मतलब साइकिलिंग वगैरह ही करते हो या फिर और भी कुछ मतलब क्या फिटनेस मंत्र जानना चाहोगे? रनिंग, वॉकिंग। अभी तो घर पे मैंने ये ट्रैकर लगाया हुआ है मोबाइल में ही, तो 6,000 स्टेप्स में करती हूँ। मतलब ये नहीं है, एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए जिंदगी में, तो अपने आप खुशी आती जाती है। एक्सक्यूजेस रहे तो कुछ भी नहीं कर लो, आज नहीं कल नहीं, कुछ भी कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस ये हाँ, जी लो अपनी जिंदगी बस। और ये जो हंसते रहने का ये मंत्र क्या है? कि हमेशा एक स्माइली फेस रहने का, हमेशा जब भी देखो एक स्माइल हमेशा रहती है तुम्हारे चेहरे पे, और बहुत जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो मतलब क्या चीज है जो तुम्हें लाइफ में हमेशा लगता है कि मोटिवेट करता है? कि विशाखा एक दूसरी विशाखा की खोज में है, या विशाखा खुद की खोज में है, या विशाखा ऐसी थी अब उसने अपनी टोटली अपने आप को खोजा है? क्या है मतलब ये मंत्र तो यही है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनसे मुझे विचार मिला है और संस्कार मिले हैं, और जो मेरे इन लॉज है उनसे मुझे साहस मिला है। मेरे दोनों पेरेंट्स, हाँ, उन दोनों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, जो मैं खुश हूँ दोनों पेरेंट्स की वजह से हूँ, अपने पेरेंट्स और इन लॉज की पेरेंट्स की वजह से। और जो सारा जो मोटिवेशन जो मुझे मिलता है मेरा हस्बैंड की, जब भी मैं उड़ पा रही हूँ, आई एम फ्लाइंग हाई। सही बात है, सही बात है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फैमिली आपके साथ मतलब आपका साथ दे, बहुत जरूरी है। और खासकर जो हस्बैंड है, शादी के बाद जो इन लॉज है, वो अगर साथ होते हैं ना तो फिर हम मतलब अच्छा लगता है। कुछ भी अगर हम करने चाहें तो सबका सपोर्ट होने से अच्छा लगता है कि चलो कुछ अचीव करना है तो सबके साथ ही अचीव कर रहा है। एंड यू नो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एंड अ लकी वन, यू आर हैविंग अ सपोर्ट ऑफ योर हस्बैंड एंड द फैमिली मेंबर्स। और ये बहुत जरूरी भी है सबके लाइफ में जी। लड़कियों का देखिए बहुत है प्रतिभा उनमें, पर एक सपोर्ट उनको मिल जाती है ना तो पता नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुंचती है, है ना, कहाँ पहुंचती है। तो बस वही है। तो वही मैं पूछ रही थी कि जनरली बच्चे भी सपोर्ट करते हैं कुकिंग वगैरह, वो भी इंटरेस्ट लेते हैं? मेरे कैमरा पकड़ते हैं, यू नो, जब मेरे बच्चे अरे क्या बात है हस्बैंड ऑफिस में बच्चे है ना, फिर मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मा ये ड्रेस पहनो, मम्मा ये करो, मम्मा ये रेसिपी बनाओ ना उनके लिए सबको। अरे क्या बात है। टीम वर्क, मेरे बच्चों का भी, मेरे हस्बैंड का भी, मेरे सबका टीम वर्क है। और सब तो बस लोग जो मेरे फ्रेंड्स है उन्होंने रेसिपीज पूछी, तो ये सब टीम वर्क है और कुछ नहीं है। अगर वो मुझसे रेसिपीज नहीं पूछते तो मैं आज यहाँ नहीं होती, मैं भी बस पिक्स क्लिक करके डाल रही होती आज भी। तो आई थैंक यू, मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मुझे मतलब मोटिवेट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी कम से कम विशाखा के पिटारे से इतना सारा रेसिपी जो बाहर आ रहा है, क्योंकि मैं भी एक कुकिंग चैनल चलाती हूँ, मुझे भी बहुत सीखने का मौका मिलता है, तो अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट टाइप की कुकिंग करती हूँ, मैं तुम्हारा जो देखती हूँ वो हमेशा एक इनोवेटिव होता है, डिफरेंट ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले होते हैं, तो अच्छा लगता है। और मुझे ये मीठा, ये घेवर बनाना इज लाइक अ वेरी टफ जॉब फॉर मी, मतलब मेरे से कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है ये चीज, और तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि रोज की बात है। तो इतने मधु, सुंदर से इस जर्नी का हाँ बोलो। रीजन भी घेवर है। माय गॉड। हाँ, मतलब अगस्त में रक्षाबंधन आया था, तो लॉकडाउन में कोई खरीद नहीं सकता, तो सबके फोन आने लगे, तुम घेवर बनाओगी क्या, प्लीज हमें चाहिए। अब लॉकडाउन में कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो सबकी ये सही है। रिक्वेस्ट आने लगी कि तुम ऑनलाइन बता दो। फिर ये मेरी जर्नी यहाँ से भी स्टार्ट हुई है मधु, घेवर से। मैं घेवर को कभी भूल नहीं सकती। और मैंने लाइव सेशन किया था, और मेरे को कुछ प्रोफेशनल इसमें कोई आइडिया नहीं था, कैसे कैमरा पकड़ना है, क्या करना है। आई एम रियली स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। मैं कहा जो होगा, दिखता है कि नहीं, पूरा ब्लैकिश दिख रहा था, लेकिन मेरी आवाज पहुंच रही थी वहां पर, मैं कर रही थी। नहीं, लेकिन क्लियर था, लोगों ने, क्लियर था। क्लियर था, लेकिन हाँ वही क्लियर है था, कि मैंने मुझे देखा था। प्रोफेशनल तरीके से नहीं था वो, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया मधु। सीरियसली मुझे मैं खुद बहुत। ही बोल रही हूँ ना, मैं खुद ही बोल रही हूँ कि वो घेवर जो देखा मैंने बना के, इतना फास्ट और इतना अच्छे तरीके से तुमने पूरा शेप एंड पूरा एवरीथिंग जो आया था, मैं कितना बार बनाई हूँ, मेरी पूरी कढ़ाई अलग हो जाती है, घेवर टूट जाता है। आई डोंट नो, मैं पता नहीं, मैं इस चीज में प्रोफेशनल नहीं हो पा रही हूँ। मुझे लगता है किसी दिन तुम्हारे पास आके मुझे सीखना पड़ेगा, श्योर और श्योर श्योर एकदम श्योर फेस टू श्योर। फेस। बस एक्सपेक्टेशन यही है कि बस ये लॉकडाउन की जो पीरियड है वो जल्दी से खत्म हो, सब नॉर्मल हो जाए, एंड देन हाँ, बहुत सारी चीजें सब जो हमें मिलके करनी है, राइट। तो अच्छा लगा। एंड विशाखा, एक और चीज पूछना था। लाइफ में लोगों की जनरली देखो कि सक्सेस एंड फेलियर दोनों होता है, राइट। तो तुम्हारे लाइफ में भी कुछ ऐसा चीज हुआ होगा कि तुम जनरली फेलियर्स की तरफ नहीं देखते, हम नहीं देखना चाहते, किसी किसी को डिप्रेशन आ जाता है कि मैं ये नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। तो तुम्हारे लाइफ में क्या लगता है कि सक्सेस या फेलियर दोनों में से कौन सा अच्छा टीचर है, तुम्हारे लाइफ में क्या रहा है? वेल मधु, सक्सेस और फेलियर ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। हर एक के जीवन में सक्सेस और फेलियर आना ही है। ये नहीं है कि सक्सेस सक्सेस ही आ रहा है या फेलियर फेलियर आ रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास आएंगी, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं आपके पास, वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाती हैं कभी कभी। तो आप उसको है ना फेस करो, एक्सेप्ट करो। आ, आप अगर आपने उसको फेस कर लिया, ठीक है, दूसरी बार देखेंगे। खड़े होना चाहिए, उठ के खड़े होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। रोना आ रहा है, गंदा लगता है, रो लो। कितने ड्रम भर जाएंगे, एक ड्रम भर जाएगा, दो ड्रम भर जाएंगे, या हमारे पिलोज जो है गीले हो जाएंगे, होने दो, पिलोज और आ जाएंगे, आप रो लो। जो मन है ना हल्का हो जाएगा, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, और फेलियर से कभी भी घबराओगे नहीं। ये तो मान लीजिए, जब बच्चा बड़ा होता है, चलता है तो गिरता है, उठता है ना, उसको खरोंचे हम्म। आती है, तो इसी वो हम ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। आप हमेशा ऐसे मैं ही क्यों, मुझे ही भगवान ने क्यों सोच लिया है कि मुझे ही फेलियर मिले। भाई राइट। आप नहीं हो, सब में है ये बात। लेकिन सब इससे कैसे टैकल करते हैं, यही है आप में अलग, उनसे अलग करता है। तो फेस करो, एक्सेप्ट करो, बस यही है। और मेडिटेशन करो, और आप एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, बातें करो अपने फ्रेंड से, तो बस यही जर्नी लेके जाएगी आपको फेलियर में सक्सेस होने के लिए। तो सही बात है, मतलब हर चीज सिखाता है हमें लाइफ में, फेलियर्स भी बहुत कुछ हाँ सिखाता है, हाँ, शायद ज्यादा बेटर मैंने सिखाता है। मैंने हम्म। भी एक शू स्टोर ओपन किया था। 5 इयर्स तक चलाया वो, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मुझे सब कुछ बंद करना पड़ा। कुछ नहीं मैनेज हो रहा था। मैं बहुत हैवी लॉस में गई थी उसमें। लेकिन क्या हुआ, देखो आज मैं फिर खड़ी हुई हूँ। पैसा क्या है, पैसा राइट। आता जाएगा, चला जाएगा, लेकिन जो ह्यूमन लॉस है वो नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना मेरा प्रोफेशनल है, मैं इसके मुझे प्रोफेशन 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 नहीं, प्रोफेशन के आएगा और प्रोफेशन मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर हम्म। आप एक बार चले गए, आप वापस नहीं आओगे। जी। लाइफ इज मोर और इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। मोर इम्पोर्टेंट, तो आप बस राइट। ये सीख लो।
हम कहीं से यस भी स्टार्ट विशाखा। कर सकते हैं, जर्नी कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगी। आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके माँ बाप हैं, उनसे शेयर करो। बस फेल तो लगा हुआ, फेल से ही आप है ना ग्रो हो रहे हो। हाँ हाँ, देखो सही फेल है, से देखो कितना ग्रो हो रही हो। सही बात है। चीजों को कैसे लेनी है वो खुद इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है कि किस तरह से आप लेते हो चीजों को। लो पॉजिटिव लेने में क्या है, नेगेटिव लोग तो अपने आप आता है। चीजें क्या हाँ है कि जी। पॉजिटिव लेने की जो है वो थोड़ा सा अपना क्षमता बढ़ाओ, ताकि हमें मूव yes, लाइफ में कीप ऑन मूविंग का जो है वो फंडा है वो रहता रहे। होता रहेगा, लाइफ है चलता रहेगा, बट हारो नहीं। तो yes. विशाखा बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अभी जाते जाते मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि क्या बोलना चाहोगे आप हमारे व्यूअर्स को जो बहुत प्यार से अपने आपके ये जो शो है वो प्रेजेंट है अपना प्रेशियस टाइम निकाल के, तो क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स से आप? बस मैं यही कहूंगी, जो भी सेवा करो आप है ना। जैसे मैं स्माइल दिया, आप सबको भी स्माइल करने का मौका मिल गया। हम नहीं करते कभी स्माइल है ना, तो यही है एक स्माइल। जो किसी से भी मिलो, आप अपने मेट से मिलो जो हाउस हेल्प के लिए आते हैं, उनको भी आप स्माइल करके जब डोर ओपन करोगे, या फोन पे भी आप चैट करते हो या कुछ करो, स्माइल करोगे, तो उनका आधा दिन तो ऐसे ही खुशी में चेंज हो जाएगा। है ना, गुड जी। वाइब्स। आप है ना गुड वाइब्स दो सबको, जो भी है। तो देखो कितना अच्छा होता है, लोग आपके लिए भी अच्छा सोचेंगे, और सब मतलब अच्छा ही होता जाएगा। और ये भी कहूंगी, आज करे सो कल, करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब सही कल है, पे मत छोड़ो कुछ भी चीज। जो आज आपको टाइम मिल रहा है, आप करो और जियो, और दूसरों को भी जीने दो। जो क्या कर बात। रहे हैं लोग, उनको भी करने दो। आपको जो मन आए आप भी करो। सही है, बिकॉज वी नो दैट प्रॉमिस्ड मतलब टुमारो इज नॉट प्रॉमिस्ड टू एनीवन। वो जी। किसी कोई नहीं जानता कि कल है भी या नहीं है, तो बेटर यही है कि आज में जियो। क्या हाँ। कंपटीशन, क्या चीज करना है यार, पहले अपना लाइफ को तरीके से जीना है और फिर आगे जाना है। तो थैंक यू सो मच विशाखा थैंक अलॉट, यू। मतलब हाँ, अपने प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए, हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड अच्छा लगा बात करके, लोगों को भी ये जानकारी देना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि मैं अकेला ही ये सब चीज झेलता हूँ, मेरे साथ ही क्यों, जैसा कि कहा तुमने। तो कम से कम स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, ये तो पता चलता है कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। बहुत सारे सपने लेकर हम जाते हैं, शायद कुछ ही हम पूरा कर पाते हैं। अफसोस किसी की जरूरत करने की जरूरत नहीं है हमें, मूव ऑन करते रहो लाइफ में। तो यस। विशाखा, हाँ बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत जल्दी अपना बुक लॉन्च करो जो, और घेवर जो है वो मैं फिर ऑर्डर करने वाली हूँ, बिकॉज श्योर श्योर। मैं और मैं भेज दूंगी आपको। बस ये इस चीज में, हाँ मैं वो बताऊंगी, बिकॉज क्या है ना कि मैं देखना चाहती हूँ कि भाई मैं जिसमें अगर फेलियर है घेवर में, तो मुझे बनाना है, और ऐसा ही बनाना है जिस तरह से विशाखा बनाती है। हाँ, श्योर थैंक यू, श्योर थैंक यू, गाइस, थैंक यू प्लीज सो मच विशाखा। चैनल और लाइक करे, और मेरे चैनल को भी मतलब सब्सक्राइब करे, तो ही मैं आगे बढ़ जी। पाऊंगी। आपका प्यार मिलेगा तो ही मैं आगे। क्या है, हम सबको है ना अप्रिशिएशन भी मिलना चाहिए। हाय शुभम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। या हाय विशाखा, यू देयर? यस। या ओके। या सो हाँ, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, एंड बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस की। एंड यू नो विशाखा, टुडे इज द लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 1। सीजन 2 हम अच्छा। बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज, ऑल ऑफ द व्यूअर्स, दैट दोज हु वांट टू जॉइन टू माय शो, डू मैसेज मी सो दैट वी कैन टेक यू इन आवर शो फॉर द नेक्स्ट सीजन। ओके, सो थैंक चलो इसके साथ ही हम चलते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, लव यू बाय बाय। अलॉट। बाय। या लव यू, लव यू। विशाखा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Yeah. सो गाइज, जैसे कि जैसे मैंने कहा कि लास्ट एपिसोड है सीजन 1 का, तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद कि आप लोग इतने दिनों तक हमारे शो को सपोर्ट करते रहे, और आशा है आगे भी करते रहेंगे।
तो सीजन 2 हम जल्दी लेकर आ रहे हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें, ऐसे ही हमारा सपोर्ट करें। एंड जो लोग अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, मुझे मैसेज करें, आई विल टेक यू टू माय शो। सो टिल देन, टिल द नेक्स्ट सीजन कम्स, जस्ट आप लोग अपना ख्याल रखें एंड गुड बाय।